Assalamu alaikum dear students, how are you? Fine, thank you very much. Now today we are going to read this prose lesson, the Bahu Fort, which is in your book class 7th, page number 43. This lesson is abridged and adapted. This must have been taken from some other article, so it has been abridged. It has been made short for you and it has been adapted. So that means it has been adapted from some other book for you people to know about something about Bahu Fort, which is in Jammu. So you have adapted and you have abridged. No writer is there. So if you go to your book at page number 43, here you have a picture of Bahu Fort. This, and here also at page number 44 you have picture of this Baghi Bahu, and then through Baghi Bahu you can see Jammu city, and there is a bridge which is on the Tavi, that is Tavi river here, and there is a bridge there, and then you can have other pictures that also of Baghi Bahu, and then you have a fair there, एक मेला है यहाँ पर, लोग इसमें खरीद कर रहे हैं चीज़ें और इधर उधर दौड़ रहे हैं, मतलब enjoy कर रहे हैं, तो you can have it. So let me first of all let us have a loud reading of this lesson. Model reading करेंगे हम. Then I will explain certain difficult words to you. Then we will go further. So if you want to write certain words, I will give you the meaning. I will read first paragraph first and then I will tell. The Bahu Fort is situated along the banks of river Tavi. It's one of the oldest structures built by Raja Bahu Lochan about 300,000 years ago. The fort was repaired and partly constructed by the Dogra rulers. Now there are words, one is situate. So situate, you write, please write down, situated means located, placed, कहाँ पर है, and then you have another word here, structure. So structure means a complex, it's a building, a construction, okay, construction, something which has been constructed. And then you have another word here, repaired. So repaired, you can write mended, okay, ठीक किया उसको. Bahu Fort जो है, it's on the river Tavi, banks of the river Tavi, opposite old Jammu city, और 3000 years ago उसको बनाया Bahu Lochan ने. The fort is situated at a height of 325 meters, that is 1066 feet. Almost there are 3 feet in 1 meter. Opposite to the old town of Jammu. Jammu has expanded now. The fort structure has thick walls made of sandstone. So here you are under glossary. Glossary? Glossary means we have given you the words here in glossary, that in this particular lesson what does this word mean, that's glossary. So fort, यहाँ पर लिखा है पहले fort, a military building consisting of an area enclosed by a strong wall in which soldiers live and which is designed to be defended from attack. Sandstone, a type of rock formed from sand, यानी रेत से बनाया गया होता है ये पत्थर. Lime, a white powdery substance used in building. And then you have, it has 8 octagonal having 8 sides. अगर हम यहाँ पर इस तरह बनाएंगे कोई फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 octagonal shaped towers. The first floor, manzil floor, is lavishly, expensively, काफी महंगा बनाया गया है, built with arches. So there are arches, curves, arch जैसे वो इसके नीचे से जाते हैं, and decorated, designed
It is decorated with floral designs like baradari, floral, made of flowers or decorated with pictures of flowers, baradari, and arched pavilion or gallery. A lot of flowers are there. The design. तो 325 मीटर्स पे है, 1066 फीट अबो. और क्या है कि वहां पर ये सैंडस्टोन से लाइम से बनाया गया है. ओके. और ऑक्टोगोनल टावर्स है, वहां पर डेकोरेट किया गया है इसको पिक्चर्स के थ्रू, फ्लावर पिक्चर्स के थ्रू. A temple in its premises, premises inside the building, inside land and building all coming together, premises, popularly called the temple of बावे वाली माता. वहां पर एक टेंपल है बावे वाली माता का. मेक्स इट ऑल्सो ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस. काफी अहमियत है इसको. ओनली टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड रिलीजियस, मजहबी, बिकॉज ऑफ टेंपल. एवरी ट्यूजडे एंड संडे पिलग्रिम्स. नाउ ए पिलग्रिम इज अ पर्सन who goes to visit a religious place, a person who goes to a religious place, that is called a pilgrim. Zair, yatri, understand? Good. So यात्री जो है या जो जायर जो है, जो वहां पर जाते हैं मंदिर में, pilgrims throng. So there is a word throng written at the page number 46. To be or go somewhere in very large numbers. Here throng has been used as verb. Otherwise throng can be as noun also. जब इसको noun के तौर पर यूज करेंगे, it means crowd, especially crowd of people. But when we say, यहां पर इसे बोला है pilgrims throng. पिलग्रिम्स यहां पर सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट पर वर्ब लगा दिया है. दैट मींस दे गो इन लार्ज नंबर्स द टेंपल. द टेरेस्ड गार्डन्स, वहां पर टेरेस्ड गार्डन्स है, यानी इस तरह रेज्ड लेवल विद अ वर्टिकल और स्लोपिंग फ्रंट और साइड्स, फेस्ड विद मेसनरी और टर्फ एटसेट्रा. द लाइक स्पेशली वन ऑफ अ सीरीज ऑफ लेवल्स राइजिंग अबव वन अनदर. ऐसे 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 ऐसे, एक पहले फिर ऐसे इस तरह. दोज ऑफ यू हु हैव गॉन टू जम्मू, यू मस्ट हैव सीन, क्योंकि अब जम्मू ज़्यादा दूर भी नहीं है आजकल के ज़माने में, तो आप में से बहुत सारे गए होंगे वहाँ पर. तो यू मस्ट हैव सीन यूनिवर्सल. और जम्मू के जो लड़के इस वक्त देख रहे होंगे तो उनको तो पता ही है बहू फोर्ट. सो ये जो टेरेस्ड गार्डन जो है, गिविंग ए मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द सिटी. तो वहाँ से आप सिटी का एक ग्लोरियस मैजेस्टिक व्यू देख सकते हो. इन अदर वर्ड्स जम्मू की सिटी वहाँ से नज़र आ रही है, क्योंकि वो टॉप पर है. और यहाँ पर शक्ल में भी दिखाया है. यहाँ पर दिस इज, ये फोटोग्राफ जो है पेज नंबर 44 पे, ये लिया गया है बहू फोर्ट से या बागी बहू से. वहां से आप देख सकते हो बागी बहू के अंदर लिया गया है तस्वीर. इसमें बागी बहू भी आया है और इस साइड से इसको है ये बहू फोर्ट. तो उधर जम्मू सिटी नजर आ रही है. अ मैजेस्टिक गार्डन, ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस गार्डन नोन एज बागी बहू विद एक्सटेंसिव लॉन्स, लार्ज, बिग, एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है ये, एक्सटेंसिव. तो लार्ज, बिग. तो जहां जहां मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं, यू कैन कॉल देम सिनोनिम्स. तो इसका मतलब है कि अगर आज के लेसन में आपने देख लिया कि अगर आपने सिनोनिम्स सीख लिए, दिस इज एनफ. इसका मतलब है कि समटाइम्स यू हैव टू गिव एस, अगर एक्सटेंसिव है इसका इंग्लिश में देना है वर्ड. हालांकि उर्दू भी कर सकते हैं आप, अपनी मदर टंग में भी समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग लैंग्वेज, यू मस्ट नो व्हाट्स एक्सटेंसिव, यू मस्ट नो व्हाट्स रिपेयर्ड इन इंग्लिश. सो दैट्स व्हाई आई एडवाइज्ड यू ऑन द अदर डे आल्सो कि दैट कीप ए स्मॉल डिक्शनरी, एक डिक्शनरी रखा करो अपने पास, जिसमें खासकर इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स आप देख सकते हो. छोटी सी डिक्शनरी अपने लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की डिक्शनरी आप रखें अपने पास, क्योंकि एक हैबिट्स आपको यूज़ करना है डिक्शनरी का, और एक रीडिंग का एक हैबिट डेवलप कर लीजिए अपने आप में. लॉन्स, वो पार्क, गार्डन्स, ब्यूटिफुली फिल्ड विद फ्लावर्स एंड प्लांट्स, जहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, इज अ फेवरेट पिकनिक स्पॉट. तो पीपल गो देयर फॉर पिकनिक सराउंडिंग द बाहू फोर्ट. सो बहू फोर्ट अगर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बहू फोर्ट हियर, तो यहाँ से इसको ये बागी बहू यहाँ से है और यहाँ से नीचे
तवी है और हियर यू कैन सी जम्मू आल्सो। तो यहाँ पर लोग जा रहे हैं सड़क से पिकनिक स्पॉट, पिकनिक मनाने के लिए बागी बहू में। द गार्डन हैज ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस, क्योंकि जो वहां होना चाहिए, रेंजिंग फ्रॉम प्लांट्स, shrubs, small plants, big trees, flowers and waterfalls. The fort has become a major, means main, major, M-A-J-O-R, khas, main, this has become a major attraction. People are attracted, यानी लोगों को खींचता है वो अपनी तरफ, and a favorite picnic spot. यानी जो जम्मू जाएगा फिर बहू फोर्ट नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि उसने देखा नहीं कुछ भी, क्योंकि बहू फोर्ट तो वहां पर देखने की चीज है। द मेला, वहां पर मेला जिसको अंग्रेजी में फेयर बोलते हैं, FAIR, तो इसको हिंदी में या उर्दू में मेला बोलते हैं, MALA, ऐसे ऐसे मेला, ये मतलब उर्दू वर्ड है, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं मेला। द मेला बहू फोर्ट इज वन ऑफ द, यहां पर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है नहीं बेसिकली, तो ऐसे लिखेंगे मेला, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ऐसे पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर एडजेक्टिव फेस्टिवल्स, ईद, दिवाली, होली, है ना, बड़ा दिन जो होता है। सो इज फेस्टिवल्स एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल, जैसे आज सितंबर है तो इन मार्च अप्रैल इट इज सेलिब्रेटेड फेस्टिवल देयर। द फेस्टिवल, उर्दू में अगर इसको लिखूंगा मैं FESTIVAL, तो इसको उर्दू में बोलते हैं त्यौहार, त्यौहार, ओके। सो दिस इज फेस्टिवल, त्यौहार, रिलीजियस, इज ए वेरी कलरफुल इवेंट। इससे वहां पर मुख्तलिफ लोग आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से और कपड़े लगा के, इवेंट ड्यूरिंग विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट द टेम्पल, इस मेले में। इन द बहू फोर्ट टू सीक, सीक के दो मीनिंग्स हैं, एक मीनिंग इसकी है टू सर्च, लेकिन यहां पर इसका मतलब है टू गेट, ओके। सीक हियर मीन्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सीक मीन्स टू गेट, सीक, सॉर्ट, वर्ब है ये, टू गेट डिवाइन ब्लेसिंग्स, यानी दे वांट टू गेट गॉडली, हेवनली, बेनिडिक्शन, ग्रेस, उनको वहां पर एक मतलब ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं वो माता से लेने के लिए। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स, अम्यूजमेंट्स इन द पार्क, इन द मेला, एंड ईटेबल्स, थिंग्स विच कैन बी ईटन, ईटेबल्स, EATABLES, थिंग्स विच कैन बी ईटन, खाने की चीजें, एक तो पहनने की चीजें फॉर एग्जाम्पल, लेकिन खाने की चीजें, फॉर किड्स, स्मॉल चिल्ड्रन, एंड एडल्ट्स, जो उनके मां बाप साथ होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके लिए भी। वन कैन हैव, हियर हैव मीन्स ईट, यू सी हैव के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय, हैव अ फोटोग्राफ, ओके, हैव लंच, हैव टी, हैव डिनर। एक ये हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव रिटन, हैव डन, हैव प्लेड, हैव संग, हैव रन, बट यहां पर हैव का मतलब निकलता है ईट, हैव का मतलब है पोजेस भी, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन। सो यहां पर one can have, that is one can eat, here in this context means eat. One can have local ice creams, वो locally बनाई जाती है, कुल्फी, मलाई बर्फ उसको बोलते हैं। शुगर कैन जूस, वो गन्ने का रस, वो उसमें होता है मज़ा शुगर का, मीठा। गोलगप्पे, पानी मत आया होगा मुंह में। आलू छोले, कच्चा आलू, जलेबी, एटसेट्रा, मतलब मैनी अदर थिंग्स। देयर आर बलून्स, वो गुब्बारे बच्चों को जो पसंद होते हैं, बलून्स, ऐसे होता ना वो, समथिंग लाइक बलून। तो देयर आर बलून्स एंड कॉटन कैंडी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कि बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। मंकी वालाज,
ये यहाँ पर लिखा है इसको इटैलिक्स में इसलिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये इसको क्यों डिफरेंटली लिखा गया है। यहाँ पर मंकी वाला लिखा है, अगर मंकी लिखता तो ये वो इंग्लिश वर्ड था, लेकिन मंकी वाला लिखा है तो इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंटली बना दिया। और वो बाकी वर्ड्स भी, गोलगप्पे, आलू, शुगर के हैं वो ऐसे, कुल्फी, दीज आर लोकलाइज्ड वर्ड्स। एंड स्नैक चार्मर्स, वो स्नैक्स को नचाने वाले, स्नैक्स के साथ वो उनको वो मतलब सपेरे वहां पर। प्रोवाइड great excitement to children. Children are enthusiastic, they are zealous, they are excited, they have excitement there and exaltation, and they are very happy children. तो मुझे लग रहा है कि आपको ये लेसन जो है, छोटा लेसन है, समझ में आया होगा। Now can we do this question is, where is the Bahu Fort situated? Yes, so Bahu Fort is situated in Jammu, along the banks of Tavi river. Okay, it is situated along the banks of Tavi river, opposite old Jammu town. Okay, now who built it and when? There are two parts are there. Who built it? Let's say who. Okay, Raja Bahulochan. And when? Some 3000 years ago. 3000, not 300. शायद इनिशियल में मुझे थोड़ा सा ये स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मैं शायद 300 बोला था, बट इट इज 3000. एंड देन डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ इट. सो लुक एट द इंटीरियर. देयर इज अ टेम्पल इन इट कॉल्ड बावे वाली माता, and there is it's a place of religious significance, and then there are terraced gardens outside giving a magnificent view of the city, and there is also a majestic garden called Bahu, Bagi Bahu outside it, which is filled with flowers and plants, so it's outside. Now which part, this is इसने लिखा है यहाँ पर which past book में, but it is which part is the favorite picnic place in the fort. So यही Bagi Bahu, where you have beautiful flowers and plants, and you have all types of attracting things from trees, shrubs and flowers and waterfalls. So this has become a picnic spot. When and why is the Mela celebrated? When? So it is celebrated in March, April. तो जब आपको ये क्वेश्चन होगा, सपोज अगर मैं आपसे who से क्वेश्चन पूछता हूं, if I ask you question which starts with where, if I ask a question which starts with when, तो समझो these questions are called, we call them scanning questions. Scanning questions. Scanning questions का मतलब है here you just need one word answer. For example, who built the Bahu fort? Raja Bahulochan. When did he build it? 3000 years ago. So यहाँ पर इसमें ज़्यादा आंसर नहीं चाहिए आपको, तो इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, स्कैनिंग क्वेश्चन ही आया है, when, पहले when and why is the Mela celebrated? When? So when में आप लिखिए the Mela is celebrated in the month of May, March, April. Okay. Why? Because it is celebrated in in the memory of Bave Wali Mata, because it is people visit there in this on this occasion, because they want to get the blessings of goddess. They want to get they want to seek divine blessings. Name the things available during the fair. यानी अगर उस फेयर में आप जाएंगे वहां पर क्या चीजें मिलेंगी? ऑफ कोर्स आइसक्रीम, जिसको कुल्फी बोलते हैं, या मलाई बर्फी, शुगर केन जूस, ओके वेरी नाइस, गोलगप्पे, ओके, आलू छोले, यस, कच्चे आलू, करेक्ट, जलेबी, बिल्कुल, ये वहां पर मिलेंगी चीजें. इसके अलावा बच्चों के लिए वहां पर बलून्स हैं, कॉटन कैंडी है, you have monkey wallas there, and you have also snack charmers there to entertain you. तो ये चीजें वहां पर अवेलेबल होती है. So now there is an exercise, match the words with their meaning in A from with their meaning in B. So you have the word council, COUNCIL. You know there is one more word, that is COUNSEL, council and council. That COUNSEL council means advice, piece of advice. इसको बोलते हैं मशवरा. I want your counsel. यानी दूसरा है council, is a member of legislative council. So council here is a group of people chosen to give advice. वो council हो गया advice, वो council हो गया who give advice. Display, yes,
करेक्ट, शो। ये मत बोलना इसको जी आएगा, पता है क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है मैं एग्जाम में हम इसको ऐसे करेंगे, वहां पर काउंसिल वाला दूसरा दे देंगे, वो पहला वाला रखेंगे डिस्प्ले, आप मत बोलेंगे इसको वो आएगा, इसको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले को आएगा शो, ठीक है? दिस इज इट इज मीनिंग, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मोस्टली we did synonyms today, okay? And then we have sanctuary, okay, the inner part of a temple where the god or the goddess is worshipped, ठीक है? Opponent, opposite, adversary, kindred, relations, okay? Fight, which you should not do. Combat, parable, a story that teaches a moral, that's called a parable. Now here use the following phrases in your sentences. You know phrases, a phrase is a group of words which is ready to be used in a sentence. आजकल हम सिंगल वर्ड को भी फ्रेज बोल सकते हैं। आपको यहां पर एक फ्रेज आया है, फॉर एग्जांपल टू कैरी ऑफ, इसकी एक मीनिंग है टू विन। अब एक सेंटेंस बनाना है, आई वांट टू कैरी ऑफ द मैच, आई वांट टू कैरी ऑफ द फर्स्ट प्राइज, दे कैरीड ऑफ द प्राइज, ऐसे। तो आपको इसको सेंटेंस बनाना है, तो आप बोलिए ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। टू टेक अप, द मैटर विल बी टेकन अप इन द मीटिंग। टू टेक केयर ऑफ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, यू नो, डिस्पाइट, एक और मीनिंग है इसकी डिस्पाइट, एक और मीनिंग है इसकी नॉट विद स्टैंडिंग, उर्दू में इसके बावजूद, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट क्वालिफाई द टेस्ट। टू ब्रेक आउट, COVID-19 पेंडेमिक ब्रोक आउट इन मार्च 2020 थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये फैल गया। टू बी अफ्रेड ऑफ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, यू नो, हैव रेस्पेक्ट। टू गेट आउट, आप किसी को बोलेंगे प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम, हाँ, पोलाइट भी हैं आप, उसको बोल रहे हो रूम भी छोड़ो, या यू कैन से वुड यू प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। नाउ हियर वी हैव रीड द सेंटेंसेस। हु इज इन द क्लास, विच इज द बेस्ट ड्रेस, व्हाट्स योर नेम, हुज पेन इज दिस, वेयर डज शी रिजाइड, होम और हु डिड शी मीट। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स यहां पर हैं, यू हैव हु इज देयर, विच इज देयर, whose is there, whom is there, these are called interrogative pronouns. So quick, here now let us complete these with interrogative pronouns. First, yes, what is that troubles you much. Second, who is he, that he should object. Who is at the door, what is there that she does not know. Whose is this book, good. Where is your house, to whom does this watch belong, to whom it may concern, हम बोलते हैं ना अक्सर। Who is she, where is the cargo plane, who did she go with. So thank you very much, enjoy yourselves, you know, stay home, stay blessed, and तैयारी कर लीजिए इसकी, इस लेसन की, घर में इसको साइलेंटली पढ़िए आप, और देन इसमें ये क्वेश्चंस कर लीजिए, और खुद भी इसमें से नाउन निकाल सकते हैं आप, वर्ब निकाल सकते हैं आप, एडजेक्टिव निकाल सकते हैं आप, और भी फ्रेज अगर इसमें कुछ है वो, अगर और कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है वो भी आप देख सकते हो। इसको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक ही दिन पढ़ो, यू कैन रीड इट 2 days, एक दिन यहाँ तक पढ़िए स्पॉट तक, दूसरे दिन यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, लेकिन इसको थॉरली पढ़िए एंड डू द एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।